Hello, my dear students. I am very excited to introduce audit faculty CA Ashish Moore sir. So we have very talented, young and experienced faculty for CA intermediate as well as final के audit subject के लिए. Sir has a teaching experience of 5 years and also he has a industry experience of last 12 years. So welcome CA Ashish Moore sir in Success Mantra team. We are very glad to have you on board. So sir, मुझे आपको ही पूछना है कि आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कैसा रहा? Yes. So thank you, ma'am, for so warm welcome, and I'm excited for this journey with Success Mantra. तो अभी जैसे मेरे एक्सपीरियंस, I just thought कि मेरा एक्सपीरियंस, if I want to talk, I have cleared my CA in 2009. So November attempt था, 9 में clear किया. Then I joined. So all levels in first attempt, missed my rank by some few marks. Then I joined ENY. So 2009 I joined ENY. 2 years I worked with ENY. Then I shifted to PwC, PricewaterhouseCoopers, and worked with them for 8 years, long 8 years. So total 10 years I worked with Big Four. Then I started 2019 with my own practice with my friends. And in PwC, if I want to share, and ENY, so I have done listed companies audit, I done group reportings, many MNC companies. I did also tax audits, GST audits, और that time VAT audits भी थे हमारे time पे, वो किया है. So variety of audits का experience है, group reporting जिसको referred reporting बोलते हैं, consolidations audits जो रहते हैं, so various kind of audit, even India's implementation. जब India's आया, we actually implemented. So एक रहता है audit part और एक रहता है implementation. So when first time when you are adopting India's, we implemented also. So both the advisory role also done and audit role also have done. So variety of experience when I did work in PwC. इसके अलावा मैंने और क्या किया? So PwC में मैंने क्या किया? अब 2 साल ऑडिट, फिर उसके बाद और 5-6 साल ऑडिट, फिर मैंने I took a role of the training, जो लर्निंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है PwC का, उसका मैंने रोल लिया at local level. I also was certified trainer. So हमारा एक ट्रेनिंग होता है 7 से 8 दिन at a location, and you have to go through that. वहाँ पे टेस्ट भी होता है, उसमें you have to like बोले तो speaking and all training and how you present and all this has been seen, and then you get a certified trainer, then only you can take a training. So वो भी हमने go through किया. Then I took a training. So last 5-6 साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ PwC में, इंटरनल लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, एक्सटर्नल भी. इवन न्यू इश्यूज आते हैं, इवन ICAI forums also I have helped in background, or I have given sessions also. So ये सब PwC में सर्टिफाइड ट्रेनर के बाद किया. इवन रेटिंग्स मिलती थी उसमें. इफ यू गेट, सो आउट ऑफ 5, इफ यू गेट 3.6 से नीचे रेटिंग, यू कैन नॉट टेक ट्रेनिंग. So that also we have to ensure that training is delivered effectively. So I always used to get a good rating in that. उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने ग्लोबल एलिनिन भी, फिर मेरे को ये काम करने के बाद और एक्साइटमेंट लगा. मैं बोला कैसे ये बनता है, who are people behind this. So I have took challenge, or I took that new role also, and I worked with the global L&D who sits in UK, या लंदन में बैठते हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया. ट्रैवल टू US फॉर सम इंडक्शन वर्क एंड देन वर्क विद देम. उसमें एक बेनिफिट हुआ मुझे कि आई प्रिपेयर्ड ऑल्सो. सो मैंने ट्रेनिंग मटेरियल प्रिपेयर किया, मैंने बोर्ड गेम्स, सो अलग अलग इनोवेशन वाज थीम, सो उसमें अलग अलग ई-लर्निंग्स बनाए. सो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट वाज देयर. उसमें अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया. सो दिस इज व्हाई ब्रीफ जर्नी की ENY, PwC एंड बिग फोर का जर्नी. Lot of clients interactions, students, even articles रहते हैं काफी. So it was fun for me last 12 years after clearing CA. Yes, ma'am. Yeah, so now I'm looking for this my new journey of auditing intermediate students के साथ and final students के साथ. So yes, looking forward for it. Yes, so Ashish sir is perfect teacher for teaching audit subject because उनको Big Four का experience है in audit department, and सिर्फ audit करने का नहीं but also training also.
सो ट्रेनिंग का मटेरियल कैसे प्रिपेयर होता है वो भी सर ने प्रिपेयर किया है. सो आई थिंक सर यू आर द परफेक्ट टीचर फॉर ऑडिट सब्जेक्ट. एंड स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करेंगे आपके क्लास में, क्योंकि अभी उनको सिर्फ कीवर्ड्स मगअप नहीं करने हैं, उनको प्रैक्टिकली भी समझेगा कि ये ऑडिट जो कंसेप्ट लिखे हैं बुक में वो एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं. सो सर स्टूडेंट्स का ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स रादर आई वुड लाइक टू आस्क कि आप क्लास में जो भी कंसेप्ट सिखाएंगे उसका प्रैक्टिकल अप्रोच एंड एग्जाम अप्रोच, उन दोनों में बैलेंस कैसे रखोगे? So yes, this is a good question because जैसे we decided when we discussed, so आपने बोला कि क्या challenges आ रहे हैं students का, and you referred me many students. I also seen question papers before starting कि जैसे answer sheets क्या marks मिल रहे हैं, and जब मैंने भी discussion किया तब वही एक सवाल था कि सर, और कुछ स्पेशली फाइनल के स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने ऑडिट किया है, हमारे आर्टिकलशिप में हमारा एक्चुअल एक्सपोजर, पर जब लिखने आते हैं तब डिफिकल्टी हो जाती है. सिमिलर दैट इज वेरी, जब मैंने भी ऑडिट पढ़ा था, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये लगता था कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, फ्रैंकली, बट यस दिस ऑल इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. बट इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है, अभी अपना फोकस होना चाहिए एग्जाम. बट सी, एग्जाम क्लियर होने के पहले एंड सिलेबस आप देखोगे तो इज वास्ट, स्पेशली फाइनल में तो काफी वास्ट है, इंटरमीडिएट में भी काफी अच्छा सिलेबस है, एंड फर्स्ट टाइम आप ऑडिट पढ़ोगे तो काफी थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, एंड यू डोंट हैव प्रैक्टिकल अप्रोच. तो दैट्स व्हाई माय अप्रोच विल बी कि थोड़ा जो मेरे लाइव एग्जांपल्स है, जो केस स्टडीज है, फ्रॉड जैसे हुआ है उसमें कैसे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का फ्रॉड कैसे होता है, सो दोस थिंग्स इफ वी प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो क्या फायदा होगा आपको, रिलीवेंट होगा, एंड एक सेकेंड आपको फायदा होगा कि आप ध्यान में रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर बाय दोज एग्जांपल. सो माय प्रैक्टिकल अप्रोच विल बी लिमिटेड टू शेयरिंग यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, शेयरिंग यू एक्चुअल ऑडिट कैसे होता है, सो दैट आप रिलेट कर पाओ जब आंसर आए. और वन मोर थिंग, अभी आपने इंस्टीट्यूट का भी देखा है कि इंस्टीट्यूट का फोकस क्या हो गया है, मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. आप देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, केस स्टडी है 10 मार्क 15 मार्क के लिए, सो उसमें भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच जब अपन डिस्कस करेंगे तब काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इट इज अ वास्ट थिंग. वो अपन डिस्कस करते समय वो भी बेनिफिट होगा कि हाउ यू शुड लुक अप थिंग्स. और जेनरिक क्वेश्चंस जब आते हैं ऑडिट में, काफी बार अभी अपन ने देखा है कि जेनरिक क्वेश्चन आते हैं, वी डोंट रिलेट कि ये कहाँ पूछना चाहते हैं, वो भी हेल्प करेगा. सो मोर आई फुल्ली टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एग्जाम्स है, सो दैट बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल इंश्योर दैट इन क्लास. ये सो एग्जैक्टली सर की स्टूडेंट्स को यही चाहिए था कि हमें प्रैक्टिकली भी समझना चाहिए कि ऑडिट के कंसेप्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें वो एग्जाम में आंसर भी लिखने को आना चाहिए जो इंस्टीट्यूट को चाहिए. So yes, so sir, what will be exact methodology of your teaching? So क्या-क्या क्लास में होने वाला है? Yes, so I think इसके लिए बोलने से ज्यादा I will just share some points. Okay. I will just share my screen. I hope आप लोगों को दिख रही है. Yes sir. Yes. So yes. तो चलो. So our USP क्या रहेगा अपने क्लास में जब अपन, so yes, मैम ऑलरेडी टोल्ड एक्सपीरियंस इन एक्सपर्ट फैकल्टी, मैं खुद की पढ़ाई और क्या करूँ. And we focus on concept clarity. तो see, प्रैक्टिकल एग्जाम से, कंसेप्ट क्लियरिटी से, कभी आपको कोई बाउंसर आया, सो जैसे आपको पता है जब आप कुछ भी क्रिकेट आपने खेला है, जब आपका सपोज शॉट सब क्लियर रहे तो यू नो व्हेन टू डक, छोड़ना कब है, कब सिक्स लगाना है. So that concept clarity will help you. So focus on concept clarity is important and oriented, exam oriented focus, है ना. So we'll focus on conceptual clarity with practical examples so that आपको वो याद भी रहे और आप properly लिख भी पाए. उसके बाद हम simulation of actual audit करेंगे, जैसे actual audit में क्या होता है उसका एक पूरा हम environment create करके we will learn. So क्या हो जाएगा, again it helps you to get a concept और क्यों करना है, background about that. और मेरे दिमाग में ऑलवेज ये क्वेश्चन रहता है कुछ भी चीज करने के टाइम पे, इफ यू नो व्हाई, कि भाई ये क्यों कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द रीजन, देन इट गिव यू गुड फ्लेवर, फिर समझने में भी इजी होता है और उसका एप्लीकेशंस भी इजी हो जाता है. दैट वी विल डू. फिर प्रैक्टिस एग्जाम हम लेंगे,
जैसे टेस्ट सीरीज रहेगी, हम्म, प्रैक्टिस एग्जाम्स रहेगी, हम्म, क्वेश्चन हम रहेंगे, हाँ, 1-to-1 काउंसलिंग भी मैं मैंने जब स्टूडेंट से डिस्कस किया, आई थिंक एंड करंटली जैसे मार्क्स आए हैं, स्कोरिंग हुआ है, क्वेश्चंस काफी जेनरिक भी आए हैं, सो आई विल प्रिफर टू हैव 1-to-1 काउंसलिंग विद द स्टूडेंट्स टू गेट कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या चैलेंज आ रहा है. सो आफ्टर एग्जाम्स, आफ्टर आवर टेस्ट सीरीज, we'll have 1-to-1 counseling. Always I am available, but this is a agenda point for me कि मैं करने ही वाला हूँ. So अपने काफी बार आते हैं स्टूडेंट तो हम बात करते हैं, बट ये एजेंडा रहेगा कंपलसरी, सबको काउंसलिंग करना ही होगा, so that it is easy for them. इंटरेक्टिव रहेगा क्योंकि लाइव क्लासेस हम ले रहे हैं, सो फाइनल के लिए भी हम लाइव, आई विल स्पीक मोर अबाउट दैट, बट इसलिए वो इंटरेक्टिव रहेगा जब आपको क्लैरिटी नहीं है ये क्या बोलना चाहते हैं, सो वो बहुत इजी रहेगा. विल हैव अ इंटरेक्टिव. विल शेड्यूल आल्सो एग्जाम्स के लिए कि भाई क्या कैसे प्लान करना है, स्टडी कैसे करना है, ऑडिट का कैसे करना है. सो आई नो शैली मैम, आई हैव सीन you help students a lot in agenda, and I have seen they thanking you for this, and this is important because हम भी जब स्टडी किया, क्योंकि CA is a very huge syllabus, various subjects, so जब आप प्लान नहीं करते हो ना, आपके जैसे एक्सपर्ट्स उसको प्लान करके देते हैं, तो इट हेल्प्स देम and it reduces their burden. So that is also my plan will be कि ऑडिट में कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, and value add sessions मेरा जो करियर गाइडेंस बोलो, आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग कैसे हैं, अलग अलग कोर्सेज के बारे में क्या है, USCPA क्या होता है, so those things, so interesting कभी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को लग रहा है, so I will like to do that, add value to them. And in addition to this, question answer, क्योंकि जब तक हम ये प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चन आंसर को नहीं लगाएंगे तब तक हेल्प नहीं होगा. तो वी विल डिस्कस इन क्लासरूम आफ्टर कंसेप्ट्स, 1-on-1 क्वेश्चंस, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, उसका कैसे व्हाई दिस फ्लो इज देयर, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. सो ये हो गया अपना यूएसपी. मेथोडोलॉजी में जैसे काफी चीजें हो कि भाई मॉड्यूल पूरा कवर होगा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है. सब जन बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि बोलते तो सब है, करते हैं कोई है. और लाइक इट हैपेंड एवरीबॉडी, म्हणजे लाइक स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि भी मॉड्यूल कवरेज नहीं होता है. वो चाहते हैं कि छोटे में कैसा हो जाए, बट छोटा इंपॉर्टेंट है, बट मॉड्यूल में आप एक बार पढ़ लो, कुछ कंसेप्ट बहुत छोटी रहती है, बहुत इजी रहती है, बट आप मॉड्यूल से नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. सो विल हैव कंप्लीट कवरेज ऑफ मॉड्यूल. आई विल इंश्योर कि मेरे नोट्स थ्रू, अपने क्लास थ्रू अपन मॉड्यूल्स को कैसे कंप्लीटली कवर करें और कैसे अपन क्लास में डिस्कस करें, दैट इज माय ड्यूटी एंड आई विल डू दैट. नोट्स का रिवीजन, समरी नोट्स रिवीजन रहेगी आपको जो हेल्प करेंगे, एंड उसमें देन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, दैट्स मस्ट, बिकॉज अल्टीमेट एम क्या है अपना. सो अपना विजन इज क्लियर, योर एंड माय विजन, कि अपने को एग्जाम क्लियर करना है ना. तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स का जो विजन है वही अपन उस तरह ही काम करेंगे. लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, केस स्टडी, सिमुलेशन, वो सब आपको हेल्प करेंगे टू रिमेम्बर. केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, फ्रॉड्स कैसे हुआ, व्हाट वाज द माइंड, ऑडिट में किधर फॉल्ट हुआ था, क्योंकि फिर वो आपको रिलेट करने में इजी होता है. तो वो केस स्टडीज भी हम काफी डिस्कस करेंगे. मेमोरी टेक्निक्स भी, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है, जहाँ पे आपको कुछ जो कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, दैट आल्सो विल हेल्प and we'll discuss in that. And क्लास में ऑलवेज लैंग्वेज विल बी अपना हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसे जिसको लगे, मराठी, जो अपने को लगे, जिससे आपको समझ पाए उस लैंग्वेज सीखेंगे. सो दिस इज व्हाट आवर मेथोडोलॉजी एंड यूएसपी विल बी फॉर द क्लास. सो यस, yes, so sir, कोई क्वेश्चन या स्टूडेंट्स को हो तो आई विल ऑलवेज, एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. इसमें आपको आपको लगता है कि ये भी कर सकते हैं तो वील ऑलवेज वर्क अपॉन दैट. यस. सो सर, स्टूडेंट्स के जो डिमांड होते हैं कि हमें क्लास से कंसेप्ट्स भी क्लियर करके चाहिए, हमें रिवीजन नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे लिखना है, एग्जाम एनवायरनमेंट को कैसे फेस करना है, एंड उसके साथ साथ आगे का करियर गाइडेंस भी, वो सारा एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट्स का फ्रॉम द क्लास. And all these expectations you are fulfilling in your class, so we are very excited about this class. And sir, what about the demo lectures, whether students can attend demo lectures for few days? Yes, definitely. They can attend demo. So 7 days is what we decided now. So 7 days का demo lectures वो attend कर सकते हैं, live भी कर सकते हैं, recorded भी मिल सकता है उनको.
So both options are there. yes and सर ने ऑलरेडी कुछ यूट्यूब के वीडियोस सेम Yeah. चैनल पे अपलोड किए हैं. सो 10 मिनट्स के छोटे छोटे कंसेप्ट्स है जो सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट समझेंगे. सो आप सेम चैनल पे सर के कंसेप्ट्स वीडियोस भी देख सकते हो. सो सर, ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बैच. सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच? यस, अभी सीए फाइनल ऑडिट का जो बैच है वो अपना 20 दिसंबर से चालू हो रहा है, 28 दिसंबर कमिंग मंडे. एंड जो इंटरमीडिएट का बैच है वो 23 दिसंबर से चालू हो रहा है. फाइनल का बैच सुबह रहेगा. आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो, डेमो भी अटेंड, आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, ले सकते हो, दोनों ऑप्शन है. सिमिलरली इंटरमीडिएट का जो है वो 23 दिसंबर से शाम को रहेगा, इवनिंग में. बट उसमें एक्साइटेड है जो हम बोलते हैं जो जगह में आपने पढ़ना चाहिए वो जगह, लाइक आई हैव दैट कनेक्टिविटी. तो प्रेस्टीज पॉइंट पे अपना क्लास रहेगा इंटरमीडिएट का, फेस टू फेस रहेगा. आपके पास ऑप्शन है, आई विल प्रिफर, सो दोनों के लिए मैं प्रिफर करूंगा कि आप अटेंड करो लाइव या फेस टू फेस जो भी है, बट इंटरैक्टिव रखो. तो आप पहले इनिशियली आप जब आओगे तो इट विल बी गुड ब्लेंड कि आप जब बैच के लिए आओगे या अटेंड करोगे लाइव तो आपको सब जगह की कंसेप्ट कैसे है और आप डिस्कस भी कर सकोगे. फिर एक बार आप हो गया तो यू कैन डू रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो आप देख सकते हो. तो माई प्रेफरेंस विल बी मोर ऑफ लाइव, so we can have that. Yes, so 20 और 23 दिसंबर. Yes, so CA final classes are starting from this Monday, correct sir? 28 December. Yes. Morning time है 8 to 10 and online class रहेंगे, as well as you will get recorded backup also. And for CA intermediate it is starting from 23rd of December. Okay, 23rd December evening का time रखा है 6:30 to 8. So जिनकी आर्टिकलशिप अगर स्टार्ट हुई है you can come after your office also. एंड ये इंटरमीडिएट की बैच फेस टू फेस रहेगी एट प्रेस्टीज पॉइंट, या ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी बैकअप है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड जिनको इस बैचेस के डेमो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिल अप द इंक्वायरी फॉर्म गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड शेयर दिस वीडियो with all your friends and like the video and subscribe to our channel. Yes sir. Yes, one more thing ma'am, जैसे अब जो recorded lectures रहेंगे वो आपको सेम डे मिलेंगे अपने ऐप पे जो सक्सेस ऐप है. so you can download that app, you can take classes from that recorded and उस पे ही देख सकोगे आप recorded. और डेली रहेगा तो आप जैसे एक डिसिप्लिन रहता है. सो मैंने काफी बार देखा है कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेते हैं बट वो डिसिप्लिन नहीं होता है, और या वो थोड़ा पढ़ते साथ में, जैसे संडे को 5 घंटा लेके बैठ गए. बट कोई भी सब्जेक्ट आप 4-5 घंटा एक साथ पढ़ोगे तो वो थोड़ा उसका, अपन ने पढ़ाई है मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, तो वो कम होते जाता है अपना लर्निंग. पर आप जैसे ही आ जाता है, आप रिकॉर्डेड ले रहे हो, सो आप करो, उसके बाद क्वेश्चंस पूछो एंड आई विल बी हैप्पी इफ क्वेश्चंस कमिंग अप. तो आप वो एक डिसिप्लिन से रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, डाउट इमीडिएटली क्लियर कर पाते हो, यू डोंट नीड टू कंपाइल एंड यू विल हैव ऑलवेज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आपका मैसेज है, मेल्स है, जब से भी आप क्वेरीज पूछना चाहोगे, वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू. एंड कमेंट, ये जो वीडियो है उस पर आप कमेंट करो, आपकी कोई सजेशंस हो, आपको कैसे लगा. और जो मेरे कंसेप्ट्स के वीडियोस भी मैम ने बोले वो भी छोटे छोटे डाले हुए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एंड डेमो है ही, क्लास जब चालू हो रहा है तब. सो डू अटेंड डेमो. सी यू गाइस, इट्स माय प्लेजर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू. हैप्पी लर्निंग. यस, ओके. So thank you very much students for watching video and details about the recorded lectures. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एंड आपको पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं फ्रॉम आवर ऐप तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर. सो थैंक यू वेरी मच. शेयर दिस वीडियो एंड लाइक टू आवर चैनल, लाइक टू आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो. थैंक यू. Thank you. Bye bye.